नमस्कार दोस्तों, और सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी के लिए साल 2025 बहुत ही आनंद वाला साल रहे। इसी के साथ अब आज 2 जनवरी की टॉप हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच रवि शास्त्री ने खराब टीम सिलेक्शन को बताया भारत की हार का एक बड़ा कारण। याद रखिए, मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में भारत को 184 रन्स की करारी हार मिली। इसके बाद अब 5 मैच की टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 की बढ़त ले ली है। अगर भारत वहां पर भी हार जाता है तो ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी यकीनन उनके हाथ से छीन जाएगा। दिसंबर 2024 का जीएसटी कलेक्शन रुपीस 1.77 लाख करोड़ पर आया। ये आंकड़ा पिछले साल यानी कि 2023 के जीएसटी कलेक्शन से 7.3% यानी कि 7.3% ज्यादा है। इस कलेक्शन के बाद जीएसटी का आंकड़ा अब पिछले 10 महीने में लगातार 1.7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है। मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार 2024 भारत का सबसे गर्म तापमान वाला वर्ष था साल 1901 के बाद। 2024 में तापमान की उछाल 0.65 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड एवरेज पर था, जो कि पिछले 123 साल में सबसे ज्यादा है। तापमान के एवरेज उछाल का प्रीवियस रिकॉर्ड 0.54 डिग्री सेल्सियस था, जो कि साल 2016 में देखा गया था। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में न्यू ईयर पार्टी पर हुए आतंकी हमले में 10 लोग मारे गए। इसके अलावा 35 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। ये तब हुआ जब आरोपी ने न्यू ईयर पार्टी मनाने वाले भीड़ से अपने ट्रक को ठोका और उसके बाद अंधाधुंध गोली चलानी शुरू कर दी अपनी बंदूक से। अमेरिका के FBI यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इस घटना की तुलना एक आतंकवादी कार्य से किया है। FBI ने इस केस के आरोपी को शमशुद्दीन जबर नाम से पहचाना है और इसके अतिरिक्त उनके ट्रक से उन्होंने IS यानी कि इस्लामिक स्टेट के झंडे भी बरामद किए हैं। इस्लामिक स्टेट, याद रखिए, एक डेजिग्नेटेड आतंकवादी संगठन है। Good evening viewers and welcome to the top headlines of the 3rd January. The Supreme Court questioned the central government on the implementation of a legal MSP, that is a minimum support price guarantee for farmers. The central government was to begin planning for this very MSP proposal from December 2021, which was nearly a month after Prime Minister Narendra Modi withdrew the 3 farm laws that existed at that time. The 3 laws, which were passed by Parliament in 2020, saw a year-long protest by farmer groups, mainly from Punjab. The Karnataka government approved a 15% hike in the bus fares of Road Transport Corporation, that is RTC buses, from Sunday. The hike will be applicable for all the 4 RTCs in the state, including in its capital city of Bengaluru. The government has also made it clear that the Shakti scheme that provides free bus services for women will continue as it is, but those women who are traveling in premier bus services will have to purchase the tickets. A Bangladesh court on Thursday rejected the bail plea of former ISKCON leader Chinmoy Krishnadas in a sedition case. Remember, Das was arrested from an airport in Dhaka on November 25th last year. Following his arrest, he was brought to Chattogram, which is a city on the southeastern coast of the nation. He was charged for allegedly desecrating the Bangladesh flag that was brought to Chattogram, which led to a huge violence as well as the death of a government prosecutor. 10 people were injured at a shooting outside a nightclub in New York City. The incident took place on Wednesday night outside a nightclub at Queens, New York, when 3 or 4 men started firing at the people standing there. The 5th test match between India and Australia commenced today at Sydney. At the end of day 1, India was bowled out for a paltry total of 185 in 72.2 overs. And in response, the Aussies ended the day at 9 for 1. For Australia, Scott Boland was the pick of the bowlers with figures of 4 for 31 in 20 overs. नमस्कार दोस्तों, और आज यानी कि 4 जनवरी के हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। दिल्ली पुलिस के इलीगल इमिग्रेंट्स के विरुद्ध ड्राइव में 7 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया।
उन 7 में से 5 लोग साउथ ईस्ट दिल्ली से 1 जनवरी को पकड़े गए थे। याद रखिए 10 दिसंबर 2024 से ही दिल्ली पुलिस की ये ड्राइव जारी है और इस प्रक्रिया में अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हुई है और उनमें से कई इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को अपने मुल्क वापस डिपोर्ट किया जा चुका है। टॉलीवुड सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को एक हैदराबाद की अदालत से मिली जमानत। अपने बेल ऑर्डर में कोर्ट ने एक साफ आदेश दिया है कि अब से हर रविवार को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक अल्लू अर्जुन को इस केस से जुड़े इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मिलना होगा। अब ये प्रक्रिया या तो 2 महीने तक चलेगी या फिर तब तक चलेगी जब तक इस मामले में चार्जशीट फाइल नहीं होती है। तो याद रखिए अर्जुन को पिछले महीने 17 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था 4 दिसंबर के हुए स्टैम्पीड केस में। ये स्टैम्पीड तब हुआ था जब 4 दिसंबर को एक बहुत बड़ी भीड़ उमड़ के आई थी एक थिएटर के बाहर उनकी लेटेस्ट फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर को देखने के लिए। जी हाँ, हैदराबाद के संध्या थिएटर में हुई इस स्टैम्पीड के कारण एक 35 साल की औरत की जान चली गई और उनका 8 साल का बेटा घायल हुआ था। भारत और ऑस्ट्रेलिया सीरीज के 5वें टेस्ट का दूसरा दिन आज समाप्त हुआ। भारत के फर्स्ट इनिंग्स में बने 185 रन्स के जवाब में ऑस्ट्रेलिया 181 रन्स पर ही ऑल आउट हो गई। लेकिन दिन के अंत में भारत के सेकेंड इनिंग्स का अब तक का स्कोर है 141 फॉर 6, जो कि ऑस्ट्रेलिया पर केवल 145 रन्स की लीड भारत को देती है। अब तक तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि एक बहुत ही लो स्कोरिंग मैच है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले 3 दिनों में होता क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।